Yes, sir has. Okay, great. So I'm just going to go quickly over the steps that we do. Chomsky normal form, I hope all of you know why it's used. Chomsky normal form is used so that it's this CFG is in is a standard form. We want all the CFGs so that they can be comparable, so that we can see the pattern in them, what's happening and how we do it. So how we put it in Chomsky normal form is Chomsky was a person who made this format, and the format was very simple. The format was just that कोई भी non-terminal होगा, the capital letters, basically the ones that are not in the language. If it's there, it should only go to its same breed, meaning it should only go to the same non-terminal as well. And those non-terminal will always be in paired form. That either if it's A always goes to, for example, BC, or it goes to AD, something like that. It always goes to something else that's in pairs, and those two something else should be non-terminal. It should also be not in the language. And if there's a symbol non-terminal, that if it goes to someone in the language, meaning it goes to a terminal symbol, then it should only go to one symbol. Like, for example, this non-terminal symbol could be A, this non-terminal symbol. It cannot go to A, B, no. It should only go to one. So, I hope this is clear. This is just a very basic rule that either it goes to two non-terminal symbols or one terminal symbol. So, how we make something? So, there's a theorem that basically states that any CFL or any CFG can be made a CNF. So, it's basically just to say that, for example, in the DFA NFA, there was also a statement that NFAs can also be DFAs. So, we knew that कोई भी जिंदगी में किसी भी तरह का आपके पास NFA आएगा, वो DFA बन सकता है. तो इसमें भी यही कहना है कि अगर किसी भी तरह का आपके पास CFL आया या CFG आया, आपने नींदों में बनाया, किसी भी हालत में बनाया, वो हमेशा CNF में बन सकता है. ये हमारा थ्योरम है. इसके बाद भी एक और सीएफजी उसमें भी होता है, डीएफए एनएफए में, कि कोई भी डीएफए एक सिंप्लीफाइड डीएफए में कन्वर्ट हो सकती है जिसमें सिर्फ एक ही ट्रैप स्टेट हो. सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कोई भी तरह का सीएफजी एनएफए डीएफए वो हमेशा फॉर्मेट हो सकता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में. तो अब इसको करते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स बिगिन विद एन एग्जाम्पल एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट एग्जाम्पल. One second. I'll pull up that example that I wrote. So, is this visible to everyone? Yes, perfect. So, let's do this example. So, is this Chomsky normal form में ये भी है कि एप्सिलॉन नहीं होता किसी में भी? तो हमें ये भी पता है कि एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले ही हमने देखते ही बोल दिया कि भाई इसमें तो एप्सिलॉन है, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. इसके अलावा क्या मसला है? इसके अलावा ये मसला है कि ये देखो ये डबल में नहीं है. इसके अलावा क्या मसला है? ये देखो ये टर्मिनल नॉन टर्मिनल एक साथ आ गया है. तो दिस इज द फर्स्ट मसला. एन टी इज विद टी. हमने क्या बोला था कि अगर नॉन टर्मिनल आ रहा है तो हमेशा अपने नॉन टर्मिनल भाई के साथ आएगा, और अगर टर्मिनल आ रहा है तो हमेशा अकेले आएगा. अब इसमें देखो ये जो ए एस सी है, इट्स कमिंग विद थ्री पीपल, सो दिस इज आवर सेकंड प्रॉब्लम. एप्सिलॉन है, दिस इज आवर थर्ड प्रॉब्लम. अब ये देखो ये जो बी है, ये अकेले आ गया, इट्स टर्मिनल एंड इट्स अलोन, so this is our fourth problem. Now look at this S. This is also a terminal. So this is our fifth problem. So yes, this is our fifth problem. And is this B correct? Yes, because it's a terminal and it's alone. I've gotten some message in the chat. Okay. So now how are we going to convert it? It's a very simple idea. बहुत आसान है, सिर्फ आपको सिर्फ steps follow करने हैं, याद रखने हैं. सबसे पहला step ये कहता है कि जो start state है, denote a new start state called S0. How do you denote a new start state? आप कहते हो कि आपका जब यहाँ पर S से स्टार्ट हो रहा है तो आप कहते हो मैंने एक नया टर्मिनल सिंबल निकाला S0, और सिर्फ उस पे S जाएगा. तो आपने कहा ये जो सारा डब्बा था मैंने एक और डब्बा लिया और ये सब कुछ एक डब्बे के अंदर डाल दिया. बेसिकली इन वेरी इजी वेज टू से इट, आपको इसी तरह से याद करना है कि आपने सब कुछ ऐसा एक नया स्टार्ट स्टेट डाला और सब कुछ नया स्टार्ट स्टेट में डाल दिया. दूसरा स्टेप ये कहता है कि अब आपको रिमूव द एप्सिलॉन्स. नाउ हाउ डू वी रिमूव एप्सिलॉन्स?
एप्सिलॉन्स बहुत आसान है रिमूव करना। एप्सिलॉन्स में ये होता है कि आपने जहाँ एप्सिलॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल बी में है एप्सिलॉन, तो अब हर जगह जा जाकर आपको बी हटाकर वो वाली स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए बी में है एप्सिलॉन, तो मैंने कहा अब बी ए में भी आता है, कैपिटल ए में। तो अब मैंने इसको रीराइट कर दिया कि कैपिटल ए में अब बी भी हो सकता है क्योंकि इट्स स्मॉल बी, या फिर एस हो सकता है, या फिर एप्सिलॉन हो सकता है, बिकॉज अगर कैपिटल बी एप्सिलॉन हुआ तो ए में भी अब एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस हो गया। आई कांट सी एनीथिंग अंडर द फर्स्ट स्टेप। कैन यू सी इट नाउ और इज देयर स्टिल अ प्रॉब्लम? Oh, okay. Is this visible? Okay, perfect. So, is this clear though? Because I don't think you saw it, so I hope it's clear. But if there's a question, you can ask. So, अब मैंने क्या कहा कि मैंने अब कैपिटल बी में से एप्सिलॉन निकाला, तो अब ऑल्टरनेटिवली ए में अब एप्सिलॉन आ गया, बिकॉज अब बी कैपिटल बी की जगह पर एप्सिलॉन हो सकता है। अब इसी लिहाज से मैंने कहा यहाँ पर एस स्टार्ट स्टेट है एस जीरो एस, एंड वी हैव कैपिटल एस। अब कैपिटल एस में ए एस ए हो सकता है, कैपिटल एस में ए बी हो सकता है। अब ये जब बी की जगह पे एप्सिलॉन रखा तो स्मॉल ए भी हो सकता है सिर्फ, और कैपिटल बी में स्मॉल बी हो सकता है। So up till now, this is what I've simplified by removing the first epsilon. अब मैंने कहा एक और एप्सिलॉन आ गया, तो अब एप्सिलॉन को वापस रिमूव करने के लिए दिस इज माय सेकंड राउंड। अब टू रिमूव द एप्सिलॉन अगेन, अब मैं कैपिटल ए को एप्सिलॉन रखूंगी, तो अब मैं सारी वो वाली पॉसिबिलिटीज करूंगी जहाँ कैपिटल ए आ रहा है। अब ये चीज नोट करने की है कि सिर्फ कैपिटल एस में ए आ रहा है और कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो अब मैंने कहा क्या बोलते हैं कि एस जीरो तो एस ही रहा, ए की जगह पर अब कैपिटल बी या फिर एस, एप्सिलॉन की डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर रिमूविंग। एंड देन वी हैव कैपिटल एस में, अब आई जस्ट राइट द यूजुअल वंस दैट है स्मॉल ए। अब अब मैंने कहा कि यहाँ पर ए एस ए में यहाँ पर कैपिटल ए कॉल हो रहा है ना बेसिकली, तो मैंने कहा कैपिटल ए एस ए में क्या पता फर्स्ट ए में एप्सिलॉन आ गया। So you said okay, so if there's a first epsilon, so you say okay, there's SA left. Now, what if the second in ASA, what if the second A got an epsilon? So you said, okay, I'll just counter it by saying AS. What if you said that both of the A's got epsilon? So you said, okay, so what I'm left over is S. Capital B goes to B, stays the same. Is this clear up till now? This was the tricky part in how we're making combinations of no epsilon. So if there's a question, please stop me and ask, because this is just where it moves forward. Okay, I'm assuming there's no questions. Let's move ahead. So now, is there any epsilons? No. So we're done with step 2. So now we have step 3. Step 3 says that now break the more than 2 non-terminal pairs. So what does this mean? This means that, for example, यहाँ पर अगर हम इसी example में देख रहे हैं, इसमें देखें, इसमें this can the first line be broken? No. Can the second line be broken? No. Can the third line be broken? Yes. We have ASA. We need to break the ASA into its combinations so that now it's broken down into further parts. So how do we write this further? We write this way. This. We can say that, for example, we have SO goes to S, the same thing. We have A goes to B and S, which is the same thing. S goes to AS, we have it. SA, we have it. Now what we can say is that we introduce a new symbol, for example, C, which says SA. So now if for ASA, can I write AC? It's the same thing, that instead of going to ASA, it goes to AC. Now, the rest of the things can be written the same way. A capital B, A, S, A. Now, for SA, can I write C? Yes, I can.
or I can just leave it the same way because at the end I will need it in pairs. So I will just leave it the same way it is. And capital B goes to small b. So is there any other more than two non-terminal pairs? No. So now let's move it further. So now what we're going to do is now in the fourth step, now remove single ones. So now you see that there are a lot of single entities. How do we remove them? So अब remove इस करने का तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में देखिए सिर्फ S लिखा हुआ है, तो आपने कहा S की जगह क्या मैं पूरा ये डाल सकती हूँ? जी हाँ, मैं डाल सकती हूँ। अगर मैंने ये पूरा डाल दिया तो अब मेरे पास यहाँ पर कोई सिंगल नहीं रहा, मेरे पास ये सब कुछ आ गया। तो how do we do it? Let's do it. So for example, we have S0. Instead of going to S, it goes to AC, AB, A, S, A, AS, S. Now A goes to capital B. So capital B की जगह में क्या लिख सकती हूँ? Small b. दूसरा में क्या लिख सकती हूँ? S. S की जगह पे क्या सब कुछ आ गया? AC, AB, A, SA, AS, S. अब सी की जगह क्या लिखा जा सकता है? सी तो वैसे एस सॉरी एस की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? ए सी, ए बी, ए एस, ए एस। अब फिर से एस आया तो एस को रिपीट करने के लिए आई कैन से दैट आई एम रीराइटिंग ऑल ऑफ दिस, आई डोंट हैव टू राइट इट अगेन। देन वी हैव सी एस ए। अब अगर आप लॉजिकली सोचें कि मेरे पास कहीं एस लिखा हुआ है तो मैं फिर से एस में ही जा रही हूँ, तो does that make a difference? Like for example, you have capital AS and then you say AS and then you say AS because I'm just writing AS for the S place. So do I need to make this an entire thing? No. It's no point. You don't make a recursive thing that you just go to S. That's no point. That's just a wasting of one. So I'm not going to write this S here, and I am not going to write this S here. This S is fine because it goes A to S, but this S here is not needed. I hope this is clear. So now do we have any single ones left? We say that S here is a single one. So I'm just gonna remove this here. So S here, if I replace S, so AC is already there, AB is already there, A is already there, SA is already there, AS is already there. So do I need this? No. S naught में अगर यहाँ पर मैं S end पे लिख रही हूँ, this S I'm writing at the end. So I have AC, I have AB, I have A, I have S, I have AS. So I can remove this last S. Now let's just do one more check. I have AC, AB, A, SA, AS, B, AC, AB. This one we're going to fix in a moment. We have A, SA, AS, AC, AB. This one's the same. A, SA, AS, SAB. So you see there's no the single ones now. Now what we're going to do is change NT T with an additional NT. So what the way to do it is that अब मैं ये कहूंगी कि मैंने कहा देखिए ये कैपिटल ए और बी स्मॉल बी का सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी का एक बना हुआ है कॉम्बिनेशन. Now I don't want them to be together. I want this small a to go to alone and I want this capital B to be with one of its brothers non-terminal. So how do I bring it with its non-terminal, with its brothers? इस तरह से कर सकती हूँ. मैंने कहा इस स्मॉल ए को मैंने किसी नॉन-टर्मिनल सिंबल के अंदर डाल दिया और उस नॉन टर्मिनल सिंबल को मैंने कैपिटल बी के साथ कॉल कर दिया. इस तरीके से आई कैन नाउ फुलफिल बोथ ऑफ माय कंडीशंस के स्मॉल ए किसी एक पे अकेले ही होगा और कैपिटल बी के साथ अपना कोई भाई होगा. तो आई सेड ओके लेट्स फिक्स दिस एंड से आई सेड लेट्स इंट्रोड्यूस अनदर सिंबल x एंड दिस x गोज टू स्मॉल ए. अब मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया एस नॉट की जगह पर ए सी. अब मैंने कहा कि स्मॉल ए की जगह पर मैं एक्स भी लिख सकती हूँ. अब मैंने कहा स्मॉल ए की जगह पर क्या मैं एक्स लिखूं? नहीं, मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा. अगर मैं स्मॉल ए की जगह पर एक्स लिखूंगी तो इससे ये होगा कि अब मेरा एक सिंगुलर नॉन टर्मिनल आ जाएगा एंड देन आई विल हैव टू डू रिपीट द होल थिंग अगेन. सो आई डोंट वांट दैट.
then what we're going to do is that I can just leave it with xb. I can just leave it as a, sa, and then we have as. Next we have capital A goes to B, that's fine. We have AC, that's fine. We have small a, b, so I can just say xb, that's fine. And then we have A, and then we have SA, then we have AS, and then we have S goes to AC. Small a we want to replace with XB, and then we have A, SA, AS. Then we have C goes to SA, and B goes to. So, is there any confusion in this? This was the final solution. As you can see, it fulfills all the conditions. What was our conditions again? Let's just repeat them once. Our condition was that if there's any non-terminal, it always goes to non-terminal pairs. And if there's any non-terminal, then it either goes to a terminal single pair, and there's no epsilon. So here we have single terminal, double, double, single, double, double, single, double, double, single, double, 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 single, double, 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 single. And there's no condition that's invalidating. So is there any questions on Chomsky normal form now? Okay. I'm assuming there's no questions. So I have been given some questions by some students on context-free grammars. If there's anyone who sent in questions, can you please PM me once more, because I cannot find most of them. There were many messages since yesterday night, so I don't have most of those messages. So I don't really know which messages people have sent, basically. So I have one right at the top of my head because someone sent it just a few minutes ago. So I'll do that one. So here's the question. Oh, one thing also for the PSET too, I wanted to address. I got some messages regarding it. Unambiguous and ambiguous. The problem was that people were making ambiguous CFGs and they wanted to make it an unambiguous. So the only way to make something unambiguous is to introduce more non-terminals, but non-terminals in such a way that, for example, if A goes to S and some other things, then S goes to A. This is your ambiguous. You don't want to do that. That you don't want to make it circular. That अगर एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल पे जा रहा है तो वही नॉन टर्मिनल उसके पास फिर से आ सकता है. नहीं, आपको ऐसा नहीं करना. अगर आप ए एस पे जा रहा है तो एस ए पे नहीं जा सकता. इसको अगर आप कोई भी आपका कोई भी सीएफजी होगा, अगर वो सर्कुलर होगा तो वो एम्बिगुअस होगा. अगर वो नॉन सर्कुलर होगा तो वो अनएम्बिगुअस होगा. तो अगर आप कोई भी तरह का सीएफजी बना रहे हैं तो फर्स्ट टेस्टेड कि अगर वो सर्कुलर है, अगर एक सिंबल दूसरे सिंबल पे वापस आ सकता है तो मतलब वो किसी भी पैटर्न में वापस आ सकता है. तो फिर किसी भी पैटर्न का क्या मतलब होता है कि एक आउटपुट को किस मल्टीपल पैटर्न से बनाया जा सकता है, तो वो हुआ एम्बिगुअस. तो आप चाहते हैं कि अनएम्बिगुअस हो, तो आपने कहा मैं सर्कुलर नहीं बनाऊंगा ताकि मेरे पास एक जगह एक आउटपुट पे पहुंचने के लिए मेरे पास एक ही पाथ हो. आई होप दैट मेक्स सेंस. So for this question, what does this question say? This question says that अगर मेरे पास है string an bm, तो a n और m कोई भी तरह का नंबर हो सकता है, but they cannot be the same. Could you discuss question 2 of homework? Can you discord me the question 2 so that I can just private message me it right now, because I don't have the homework right now, and I'll look into it. So we want that n and m do not equal to each other. तो इसमें ये बहुत सिंपल है. जैसे आपने कहा कि पंपिंग लेमा में हम नहीं प्रूव करते थे ना कि हमेशा 0n 1n, दिस इज नॉट रेगुलर, बट वी कुड डू दिस यूजिंग CFGs. And how did we do it with CFGs? What was our thought process? Our thought process was that अगर एक स्टेट S से अगर हम जा रहे हैं किसी और स्टेट पे, तो मैंने कहा जब भी कुछ आए, जब भी, फॉर दिस इज वेरी सिंपल, दैट फॉर एग्जांपल जब भी A B आए तो हमेशा साथ आए.
वो कभी अकेले नहीं आ सकते। तो जब भी कभी अकेले नहीं आ सकेंगे तो वो हमेशा बराबर होंगे। तो इसमें भी ऐसे ही आपको सोच रखनी है कि अब मैं चाहती हूँ कि वो दोनों बराबर में नहीं हो, बराबर इनकी वैल्यू नहीं हो। आप क्या कह सकते हैं कि अगर वो दोनों आए तो वो साथ आए, बट मैं चाहता हूँ हमेशा कोई एक ज्यादा हो या कोई एक कम हो। तो एग्जैक्टली इन दिस वे वी कैन डू दिस, दैट मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करी, तो आपने कहा कि अगर आए तो हमेशा साथ है। नो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आए तो हमेशा साथ है। अब आई एम बिल्डिंग अप द थॉट प्रोसेस, दिस इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन में एंड में दूसरे कलर में लिख लूंगी। तो अब मैंने कहा कि हमेशा आए तो साथ है, या फिर वो दोनों अलग भी आ सकते हैं, या फिर वो दोनों फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कहा ये एस जा रहा है तो मैंने कहा एक्स पर फॉर एग्जाम्पल ये दोनों अलग भी आ सकते हैं या फिर दोनों साथ भी आ सकते हैं। एक्स पी, why did I do xp and not bx? Because I want to maintain the pattern of a's first and then b's। या फिर वो दोनों साथ भी आ सकते हैं, या फिर मुझे रोकना भी है, खत्म भी करना है। अब इसका क्या प्रॉब्लम है? इसका प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा ए एक्स बी से स्टार्ट किया और मैंने डायरेक्ट एप्सिलॉन मार दिया, तो ये तो बराबर हो गए। मैं तो चाहती हूँ इनके पास कोई मौका ही नहीं हो कि वो बराबर हो सके। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, एक तरह से हम ये कर सकते हैं कि मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया विथ ए एक्स बी, एंड देन मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस पाथ पे चली जाऊं कि हमेशा एक्स की जगह पर कोई ना कोई ए हो या फिर एप्सिलॉन हो, या फिर कोई ना कोई हमेशा कोई ना कोई ए हो या फिर खाली ए हो, आइदर वो रिकर्स कर सके या नहीं कर सके। या फिर मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल नहीं, क्या पता कोई बी आ जाए, ज्यादा बढ़ने बी आ जाए इसको बढ़ाने के लिए। अब I hope I'm clear with what I'm trying to say. What I'm trying to say is that this question has two paths. These two paths you can only follow one path। आपका पहला पाथ ये कहता है कि ए बी से ज्यादा होगा, या फिर आपका दूसरा पार्ट कहता है बी ए से ज्यादा होगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो कोई ना कोई एक तो ज्यादा होगा ही। अगर एक, या अगर कोई ना कोई खाली तो होगा ही होगा। ये नहीं हो सकता कि क्या बोलते हैं दोनों जीरो। तो हमने कहा दोनों जीरो नहीं हो सकते, तो दोनों एक तो होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो अब आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू, लेट्स ट्राई एंड मेक दिस टू पाथ्स। सो आई सेड ओके, द फर्स्ट पाथ सेज दैट आइदर आई गो टू ax। अब ए क्या चीज है? ए में हमने कहा वो ये जो रिकर्सिव पार्ट है जो हमने अभी यहाँ पर बनाया, दैट इट रिकर्सिव, तो ये जो ये दैट इट ओनली एंड्स। सो आई सेड ओके, this a states that it replaces it with a singular a। अब इसी तरह से मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये हुआ एक बी, कि बी क्या चीज है? बी ये राइट साइड वाला पार्ट है। अब ये एक्स क्या चीज है? एक्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कस्ड, दैट आइदर ये वो होता रहे ए एक्स बी। अब मैंने कहा कि अब दिस केटर्स, अब लेट्स जस्ट टेस्ट इट अ बिट। दिस केटर्स दैट फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए एक्स, I started with X। I said, okay, I am now on the path that says that एक A ज्यादा होगा B से हमेशा। अब मैंने कहा AX आया, तो AX की जगह पर I'm just gonna write A, I'm just gonna leave with A, I'm not going to A yet, and I wrote AXB, and then I wrote AAXBB। अब मैंने कहा X की जगह पर I can either go to A or to B। So up when I go to A, I have to replace it with an A, or up when I go to B, I have to replace it with a B। So either this is gonna have more A's or more B's। Is this making sense? Like, या फिर the instead of just doing this capital A capital B, I could just write epsilon and just remove this, because वो वैसे भी capital A यहाँ पर cater हुआ हुआ है, यहाँ पर capital B cater हुआ हुआ है, so I don't have to write capital A B here, so I can just write epsilon। अब एप्सिलॉन का why am I writing epsilon is the question। एप्सिलॉन क्यों लिख रही हूँ? एप्सिलॉन इसलिए लिख रही हूँ ताकि I can cater to the single A and single B property। that for example I go to AX, तो मैंने कहा X की जगह पर एप्सिलॉन आ गया और A की जगह पर एक सिंगल A आ गया, तो this makes string A। so is this string A in the correct format? Yes it is। and does n not equal to m? Yes it is। so same thing here, I can do bx, so that's epsilon dot p, which is p,
sorry, xb. So yes, so now I've catered to all the strings that either मैं दोनों को 1 1 रखूं और वहां से किसी एक को ज्यादा कर दूं, या फिर मैं किसी को एक को दिखाऊं ही ना. Is this making sense, this question? So this is the final solution. I'm just going to write it. Okay. So someone asked, if can do, have you sent it to me on Discord? I'll just open Discord. I did not get your message. Shouldn't A and B not be part of the languages? MN belongs N. Wait. हाँ हाँ, you are right. वैसे कैपिटल N में 1 से ज्यादा आती है. So okay, that's not a problem. It's just removing the epsilon. But this is just something to take care in mind that अगर for example आ जाता है कि आपको 0 n या m दिखाना है, तो आप सिर्फ एप्सिलॉन ऐड कर सकते हैं. एप्सिलॉन मैंने इसलिए ऐड किया बिकॉज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी डोंट हैव एप्सिलॉन्स. सो व्हेन दे डोंट हैव एप्सिलॉन्स तो मतलब एक तो जरूर होगा ही होगा. तो हाँ, यू आर राइट. थैंक्स फॉर द कैच. सो दिस वोंट बी एप्लीकेबल as it's okay. uh who asked question 2? Because I don't have question 2 right now. If someone can share it, I'll discuss it. I think I Yeah. think someone has sent the link question 2 on the Discord. You sent it on, sorry, I didn't get, you sent it on Discord? Let me send in the chat. Okay, thank you. Oh, you're the person who sent it. Yes, I saw this. So the question was basically क्या होते कि A's हमेशा B's से at most हो, उससे ज्यादा नहीं हो. That's the question, right? A's are unambiguous context for with at least as many A's as B's. Okay. So it's basically the same thing, at least as many A's as B's, or we can write it in the same way. These are not both the same things. This is not A's are at most B's. ये तो PSET का question नहीं है. Wait, you're on a PSET question कोई पूछा गया. The issue is that I couldn't understand the solution. Yes, solution में जो आपने ये जो भेजा था ये स्टैक एक्सचेंज का, स्टैक एक्सचेंज में जो पहला आंसर लिखा हुआ था ये जो ऊपर नीचे जाने का एरोस का, कि हमने एक वॉक कंस्ट्रक्ट करना है, दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस कि हम ऐसे वॉक्स कंडक्ट कर सकते हैं. बेसिकली आप तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डा का कोर्स कर रहे हैं, तो आप डा के कोर्स में आप चीजें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि हाँ मैंने ये कोई पैटर्न बना दिया, मैंने ये एल्गोरिथम बना दिया. वॉक के कोर्स में आप ऐसी चीजें नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते. यू आर ओनली गोइंग वन विथ वन वे. So ये जो पहला आंसर था ये तो अलग ही था. At most the number of P's in W. There was a second answer. Yes, I'm going to the second answer. The second answer was basically saying ये unambiguous था. The second answer में basically ये था. वैसे मैं ये आंसर्स आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती because there is a problem set of it. Either ये कल अगर if I could take a tutorial or just a few days later, then I could discuss this question. Because I'm not allowed to discuss questions in the problem set, in the tutorials. But I'll just explain it a bit. So basically इसमें ये हो रहा है कि मैंने the thing I said before in just the same tutorial right now, that अगर आपका कोई साइकिल बन रही है, अगर आपकी कोई साइकिल बन रही है, that is immediately unambiguous. तो अगर आप इसमें देखेंगे इसमें कोई साइकिल नहीं है. एस से अगर हम जा रहे हैं, अगर आपने क्वेश्चन खोला हुआ है, मैंने क्वेश्चन मेरे सामने खोला हुआ है. ओके,
सो क्वेश्चन मेरे सामने खुला हुआ है, तो बेसिकली एस जा रहा है एस में। देखिए इसमें कोई साइकिल नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी चीज अपने आप पे वापस अगर जा रही है तो वो किसी जहां से आई है वहां से वो नहीं जा सकती। तो अगर स्टार्ट स्टेट है तो स्टार्ट स्टेट पे देखिए कोई भी चीज वापस स्टार्ट स्टेट पे नहीं जा रही। दूसरी बात ये देखिए ईएम पे जा रहा है। अब ईएम और ई, इसका क्या मतलब है कि आइदर मैं, ई का क्या मतलब है कि आइदर मैं जाऊंगी किसी एक प्रॉपर्टी पर, जो प्रॉपर उस प्रॉपर्टी पर, कि प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए ज्यादा हो या बी, एक ए आ जाए या फिर बी एक आ जाए। ओके। एंड फिर ये जो ई है ये रिकर्स कर सकता है कि जितने भी एज आना चाहे जितने भी बीज आने चाहे। एंड देन फिर बी ए कहता है कि फॉर एग्जांपल एक बी आए या फिर अगर आ रहा है ए तो एक डबल बी के साथ आए। अब इसको सॉल्व करने का वैसे बहुत ही आसान तरीका था, आपको इतने मुश्किल तरीके में नहीं जाने की जरूरत थी कि आपने इतने सारे स्ट्रिंग वेरिएबल्स निकाले और करा। आर एट मोस्ट बी इसका क्या मतलब है, अगर देखा जाए कि जब भी अगर एक ए, अभी हमने पहले अभी यही एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन किया कि वो दोनों बराबर नहीं हो। बराबर नहीं हो का क्या मतलब था कि अगर आ रहे हैं तो साथ आए वरना अलग आए। अलग भी इस सेंस में आए कि दोनों अलग अलग एक साथ नहीं आ सकते, आइदर एक अलग आए। फिर हमने एक पाथ बनाया। अब इसमें आर एट मोस्ट बी का क्या मतलब है कि अगर आ रहे ए बी साथ आ जाए या फिर बी अलग आए, ए कभी भी अकेले साथ नहीं आ सके। अगर ये जो आप आंसर देख रहे हैं, आंसर में देखिए जब कैपिटल बी का क्या चीज है, कैपिटल बी क्या कहती है कि बी अगर आ रहा है अलग तो वो हमेशा कैपिटल बीज डबल बीज के साथ आएगा। इसी सेम अगर ए पार्ट में अगर आप देखें तो ए पार्ट में भी यही किया हुआ है। बट इस चीज को केटर करने के लिए कैपिटल ई और एम था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इसी तरह से सोचें कि अगर मैं कोई चीज इंट्रोड्यूस एस कर रहा हूं और वो जा रहा है किसी ए बी की कॉम्बिनेशन पर, दैट आइदर ए बी साथ आ रहे हैं, तो अब ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है ऑर्डर। तो आपने कहा अगर ए बी आ रहा है या फिर बी ए आ रहा है या फिर बी आ सकता है, ए नहीं आ सकता। अब अगर आप एक ही वो वेरिएबल नॉन टर्मिनल वेरिएबल में कर लेंगे, जहाँ आपने कहा चलो ये हो गया ये हो गया, कोई एप्सिलॉन हो गया खत्म करने के लिए, दिस इज एम्बिगुअस। क्योंकि मैं कोई भी स्ट्रिंग इसको इसमें से घूम घूम के बना सकती हूँ। पहले ये कर लिया फिर ये कर लिया फिर ये कर लिया, या फिर अगर मैं वापस आई तो मैंने कहा नहीं पहले मैंने ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, और एक ही पाथ में एक ही आउटपुट को मल्टीपल पाथ से मैं बना सकती हूँ। तो इफ anyone who attempted the pset and they made it with just one non-terminal, then it's for sure ambiguous, क्योंकि नॉन टर्मिनल की जगह पर एक एप्सिलॉन तो होगा ही होगा स्ट्रिंग खत्म करने के लिए। तो दैट्स फॉर श्योर एम्बिगुअस। आप या फिर एक और कैपिटल यहाँ इंट्रोड्यूस करो जो सिर्फ ए पे जा रहा है, या फिर एक कैपिटल बी इंट्रोड्यूस करो जो बी पे जा रहा है, या फिर एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करो कुछ यहाँ कुछ और जा रहा है। इससे आपका वो हो जाएगा अनएम्बिगुअस। अब वैसे आप लोग का टोआ का मिड टर्म कब है, अगर कोई बता सकता है? Was this clear though? If there's any questions you can ask. Okay. So if someone can tell when's the two-hour midterm, if I don't have an exam the next day, I can take a tutorial on the night of the exam, and any questions can be asked that day. Uh, another thing, Turing machines में अगर किसी को कोई help चाहिए, कोई ज़्यादा काम है, फिर बताइएगा. I can get one of the TAs to take a tutorial on that. Is there any questions left? Someone also sent me a to question. I think someone sent it AN DM, and it was in the same sense that N has to sorry, M has to be between N and FN and 5N. So basically M can either be double or triple or 5 गुना ज़्यादा. So someone sent two are made on 20th. Okay, I don't have an exam the next time. Okay, so maybe I can take a tutorial on the 19th, or I can get someone to take a tutorial on the 19th. So basically किसी ने कहा था कि m की जो वैल्यू होगी वो n के दरमियान होगी या फिर 5n के दरमियान। अब इसमें क्या सेम प्रॉपर्टी हुई कि m आ रहा है तो हमेशा n के साथ ही आएगा, तो मतलब b आ रहा है तो हमेशा a के साथ ही आएगा, ताकि उसके बराबर n वाली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो ही हो। इफ वी वांट टू डू इट 5n, तो हमने कहा 5n तक आ सकता है बेसिकली। तो अब अगर आपको 5n करना है तो मैंने कहा अब अगर s जा रहा है
तो वो whoever asked you can just watch the tutorial. So अगर S आ रहा है तो अगर A आ रहा है B के साथ, ये तो N की प्रॉपर्टी हो गई। या फिर वो आ सकता है डबल बी, अब ये क्या प्रॉपर्टी हुई 2N। या फिर वो आ सकता है ट्रिपल बी, अब ये क्या प्रॉपर्टी हुई 3N। या फिर वो आ सकता है A 4 दफा, 4 दफा आ सकता है, ये 4N की प्रॉपर्टी हुई। और या फिर वो आ सकता है 5 दफा, तो ये हो गई 5N1। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही दिमाग में रखना है कि अगर N है तो सब आ सकते हैं, दोनों आएंगे एक साथ। अगर N से ज्यादा है तो जितने आपको ज्यादा लाने उतने आप उसके कॉपीज बना दें। हाँ, इसके अलावा मुझे और कोई क्वेश्चंस नहीं मिले डिस्कॉर्ड पर। अगर किसी को और को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। वी हैव 2 minutes और आई कैन एक्सटेंड द मीटिंग, बट दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Would that one liner be the only one solution for the last question? No. And how would we be ending the string? So for example, मैंने कहा S goes to, I'm not writing the final solution. There could be a mistake in this, so I will refine this after the class. But it could be, for example, it goes to somewhere, it can go to, for example, X. अब ये चीज मैंने X क्यों करी, ताकि वो अनएम्बिगुअस नहीं हो। फिर इसके बाद मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये जा रहा है AX भी, तो मैंने कहा वो रिपीट होता रहा है। या फिर वो जा रहा है AX BB, या फिर वो जा रहा है AX BBB, या फिर वो जा रहा है AX BBBB, या फिर वो जा रहा है AX BBBBB, या फिर वो जा रहा है एप्सिलॉन। अब इस चीज को थोड़ा चेक करना पड़ेगा अगर कोई मिस्टेक ना हो। बट आई थिंक इसमें मुझे अभी तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। ये क्या बोलते हैं, अगर जा रहा है तो इसमें देखिए, इसमें सिंगल एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर मुझे नहीं करना, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल इसका मिनिमम ही ये हुआ ए बी, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी एम्प्टी स्ट्रिंग। नहीं, यहाँ पर ए बी नहीं आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए। हाँ, तो अगर मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं करना तो मैंने यहाँ पर एस कर दिया, और यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग करने के बजाय ए बी कर दिया। AB can come through AXB and XB goes to epsilon. Yes, exactly. But मुझे for S starting ही epsilon नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा AB हो सकता है, that's the minimum. So I don't want just epsilon. So just epsilon को cater करने के लिए मैंने यहाँ पर we were discussing. तो बेसिकली मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर सिर्फ S से या फिर जो भी X था, मुझे यहाँ पर डायरेक्टली एप्सिलॉन नहीं चाहिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर S to X लिखा हुआ था और फिर X to एप्सिलॉन, तो बेसिकली जस्ट एप्सिलॉन कुड एग्जिस्ट। सो आई डोंट वांट दैट। तो जस्ट एप्सिलॉन को एग्जिस्ट ना करने के लिए मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह ए बी लिख दिया। सो यस। सो इज देयर एनी कंफ्यूजन ऑन दिस क्वेश्चन, और कोई भी सवाल है किसी को तो फिर पूछ लीजिए। I think Saad asked, is that clear? That I don't want just epsilon, so I'm going to make it AB here. That's the minimum string length. Okay, perfect. Do you have any other questions, or if anyone has any other questions, or if anyone knows anyone who sent a question or didn't cover it? This is ambiguous. Yes, this is ambiguous. बट अगर देखा जाए तो ये ambiguous, अगर हम इसको टेस्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्ट्रिंग बनानी है A BBB और जस्ट डबल ए 4 B's, क्या ये बन सकती है? हाँ, ये बन सकती है। मैंने कहा AXB बनेगा, एंड देन फिर इसके बाद AXBBB, क्योंकि एक A के साथ ट्रिपल बी आ गया और एक B पहले से एग्जिस्ट करता था। एंड देन देयर इज AABBBBB। वैसे ही देखा जाए तो ये इतनी एम्बिगुअस है नहीं, क्योंकि we should be able to cater in every, like if n is equals to 0, m is can also be 0। नहीं, वैसे क्वेश्चन में यहाँ पर exactly जो किसी और ने पॉइंट आउट किया था उसमें लिखा हुआ था NM is in capital N। So capital N basically means that it starts from 1, not from 0।
that's subjective. So अगर for example लिखा हुआ है a n m is in part of integers, so not integers but basically it starts from zero and goes forward, then फिर zeroth हो सकता है, तो फिर इसमें यहाँ पर इस जगह पर आप एप्सिलॉन लिख लें। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो फिर आप कैपिटल ए बी, ये स्मॉल ए बी लिख लें। सो आई डोंट हैव द क्वेश्चन राइट नाउ, बट आई रिमेम्बर किसी ने ऐसा ही कोई सवाल पूछा था, तो उस वजह से मैंने इसको डिस्कस करवा लिया। So whoever asked that if this was not ambiguous, this is sort of not ambiguous right now because I cannot see a path. Right now, I have not tested it yet, so I don't know, but I cannot see a path right now जो एक ही स्ट्रिंग दो पाथ्स जनरेट हो सके। वैसे तो हाँ हो सकती है, क्योंकि अगर मैंने कहा ए एक्स बी है तो ए एक्स सॉरी ए एक्स बी है, और फिर मैंने कहा ए ए एक्स बी बी डी। अब यही पाथ इसी तरह से भी जनरेट हो सकता है। तो देखिए दो पाथ बन गई, कि आइदर मैं सिंगल से डबल में जाऊं या फिर मैं डबल से सिंगल जाऊं। तो हाँ, दिस इज एग्जैक्टली एम्बिगुअस। अब इसी चीज को एम्बिगुअस करने सही करने के लिए आपने एक और कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, और ये जा सकता है ए एक्स बी पर, या फिर इसी तरह से और आपने इंट्रोड्यूस कर लिया। सो डज दिस मेक सेंस? बट इस क्वेश्चन में ये नहीं था कि आप एम्बिगुअस या एम्बिगुअस बना, आपको सिर्फ सिंपली एक सीएफजी या सीएफएल बनाना था। ओके, परफेक्ट। तो अगर किसी को और कोई सवाल नहीं है, यू कैन लीव एंड आई विल जस्ट एंड द मीटिंग। I just wanted to discuss this end part. So thank you for coming, everyone. Allah Hafiz. Okay, so after the meeting, tutorial has ended, but I saw some questions on Discord that people had sent. So I'm just going to record myself explaining them. And if anyone has any questions, you can always review the recording or ask me, and I'm always available for a question. So one of the questions that someone sent was this one. Now this question is fairly simple. So basically हमें एक ऐसा CFG बनाना है जिसमें एटलीस्ट 3 वंस हो। अब एटलीस्ट 3 वंस का क्या मतलब है कि वंस कोई भी ऑर्डर में आ सकता है। माय बेस केस स्ट्रिंग विल बी ऑफ ट्रिपल वन। मेरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमेशा ट्रिपल वन से कम नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 3 वंस तो चाहिए ही चाहिए, असूमिंग जीरोस आर जीरो। सो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका डीए पे बनाऊँ, बहुत सिंपल सा, कि मैंने एक Q0 पे स्टार्ट किया, and then I go from, I get a 1, and then I get a 1, and then I get a 1. That is my accepting state. And मैंने कहा कि इस प्रोसेस में जितने भी जीरोस आना चाहे आ सकते हैं। तब इस चीज से मुझे क्या समझ आया कि at any point in time I could get as many zeros as I want and it doesn't matter. So अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, अब इसका बनाने के लिए CFG एक सिंपल सा तरीका है। आइदर पहले आपको NFA DFA बना लो और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ो कैसे अब आगे बढ़ना है, या फिर आप क्या बोलते हैं इसको अब आप इसको थोड़ा इस लिहाज से सोचें कि फॉर एग्जाम्पल 3 वंस है। तो आपने कहा अब मेरी जो पहली बेस केस हो सकती है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आई इंट्रोड्यूस स्टेट आर एंड आई से दिस गोज टू 1। सो आई से फॉर एग्जाम्पल इट कुड जस्ट बी आर आर आर। दिस इज माई वेरी वेरी बेस केस। सही है, इसमें अभी तक मैंने जीरोस का अकोमोडेट नहीं किया। अब मैं जीरोस का अकोमोडेट कर रही हूँ, तो अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स, दिस इज गोज टू जीरो। तो अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक्स आ सकता है, बट एक्स कुड ऑल्सो बी एप्सिलॉन। दैट दैट नॉट जरूरी दैट इट्स अ जीरो, बट इट कुड बी देयर। अब ये चीज क्या कहती है, ये जो अभी इस वक्त हमने बनाया हुआ आर आर एक्स, इट सेज दैट जीरोस कम एट द एंड and they could come as many as possible. So I say as many as possible करने के लिए मैंने कहा डबल एक्स हो जाए, कि और इम्प्रूव होते जाए और इंक्रीज होते जाए एक्सेस बेसिकली और जीरोस बेसिकली। अब आई सेड दिस इज नॉट द ओनली केस, देयर कैन बी मेनी केसेस। अब केसेस क्या हो सकते हैं कि आइदर एक्स आर 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 एक्स हो जाए। अब इस चीज को मैं अलग अलग क्यों लिखूं, क्योंकि एप्सिलॉन हो सकता है ना। एप्सिलॉन का क्या मतलब है कि वो उसके अलावा हो उसके वो हो सकता है
it can be removed basically. So I said, okay, let me just write it in once that either the x is come at the start, but अब आप DFA NFA देखें तो zeros कहीं पर भी आ सकते हैं. So you said, okay, let's to cater it, I'll just add an x in between. तो अब ये चीज अगर मैं इसको थोड़ा सही से लिखूं, x r x r x r x. अब ये चीज क्या कहती है कि एक वन तो आना ही चाहिए और फिर इसके बाद जीरोस जितने भी आना चाहिए आ सकते. अब एक और चीज हमने ये नोट करी कि इसमें तो ये केटर हो रहा है कि 3 1s हो, बट दिस केटर्स एग्जैक्टली 3 1. दिस डज नॉट केटर मोर देन 3 1s. तो आपने कहा अच्छा ठीक है. तो अब आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह पर 1 भी आ गया. कि अब जितने भी आप चाहो एक्सेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो. 3 1s तो होने ही होने चाहिए. अब उन जीरोस की उन एक्सेस की जगह पर 1 भी आ सकता है या 0 भी आ सकता है. So I hope this makes sense, this question. How I thought of it, how my thought process moved. That अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आर से स्टार्ट कर रही हूँ तो एक्सेस कहीं पर भी इन सब के दरमियान आ सकते हैं. एंड वो एक्सेस 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और वो एक्सेस ला तादाद शुमार से भर भी सकते हैं. सो दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन समवन आस्क्ड वाज दिस. सो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी स्ट्रिंग हो कि वो इसका पैलिंड्रोम हो. पैलिंड्रोम का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँ या वहां से पढ़ना शुरू करूँ एक ही चीज हो. फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 0. अगर मैं यहाँ से पढ़ूंगी तो भी 0 1 1 0 है, अगर मैं यहाँ से पढ़ूंगी तो भी 0 1 1 0 है. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल द नंबर 1 0 पढ़ रही हूँ तो यहाँ से 1 0 है, पर अगर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ तो इट्स 0 1. सो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम. सो आई होप पैलिंड्रोम डेफिनेशन इज करेक्ट, इज क्लियर. सो बेसिकली अब इसको बनाने का ये तरीका है कि फॉर एग्जाम्पल अब पैलिंड्रोम वाला जो है, दिस इज नॉट रेगुलर. व्हाई इज इट नॉट रेगुलर? बिकॉज DFA ये याद नहीं रख सकता कि जो पहले आया है वो वापस आए, और वो गिनती भी नहीं याद रख सकता. कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा चलो क्यू 0 पर अगर ये 1 आया तो यहाँ चला गया, 0 आया तो यहाँ चला गया, और आखिर में जब ये वापस आया तो 1 आना जरूरी है फाइनल स्टेट पर. और क्या बोलते हैं, अगर ये 0 आया तो 1 तो 0 आना जरूरी है फाइनल स्टेट पर. दिस कुड बी अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ स्टेट्स. बट ये भी स्टिल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ योर स्ट्रिंग इज ट्रिपल 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 1 लाइक 5 1s. सो 5 1s के लिए अब मुझे इतने सारे स्टेट्स बनाने पड़ेंगे कि इट गोस हियर, इट गोस हियर, इट गोस हियर, काउंट्स बेसिकली. तो अब दिस कुड बी ला तादाद. तो जस्ट टू क्लियर इट आउट दैट दिस इज नॉट रेगुलर. अब अब इसको बनाने के लिए ये तरीका है कि मैंने कहा पहला तो कंडीशन ये है कि जिससे स्टार्ट हुआ उससे खत्म हुआ. तो अब जिससे स्टार्ट हुआ जिससे खत्म हुआ का क्या मतलब है कि अगर एक स्टार्ट स्टेट है तो अगर ये हुआ किसी भी स्टार्ट चीज से स्टार्ट, तो उसी चीज से खत्म भी होना चाहिए. अब इसके बाद अब आपने बोला कि अब मुझे बनाना है फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 0. तो अब आपने कहा कि जो भी चीज आएगी वो अब जो साइड्स में आ गई आ गई. अब जो भी चीज आ रही है वो बीच से आ रही है. तो अब आपने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से तो नहीं लिख सकती. नहीं ना. क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो स्टार्ट और एंड पे हो जो भी चीजें हो, और बीच में जो भरना चाहो वो आ सकता है. तब you said okay, so this is exactly what you want. So you said okay, just इसमें end में एक epsilon ऐड कर दिया. But is this ambiguous? Yes, definitely it is ambiguous. Why is this ambiguous? Because एक ही चीज को बनाने के बहुत सारे paths है. For example, this is cyclic. जो भी चीज है वो सॉरी x है, यहाँ पर s लिख दिया. तो अब क्या बोलते हैं, अब ये कैसे हो सकता है ambiguous? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वैसे शायद ये ambiguous है शायद नहीं है. Let's just test it before making an assumption. So for example मैंने कहा 0 s 0, फिर मैंने कहा 0 0 s 0 0, and then I said okay 0 0 1 1 0. तो बेसिकली मैंने 1 s 1 डाला बट एप्सिलॉन रिप्लेस कर दिया. अब हाउ टू मेक दिस यूजिंग अ डिफरेंट पाथ. मे बी दिस इज नॉट एम्बिगुअस बिकॉज इसका कोई डिफरेंट पाथ नहीं बन सकता. कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करूंगी तो स्ट्रिंग ही अलग होगी.
So yes. So I hope this is clear. This question, W is equals to WR. That this is the very simple way to make a equation. But आप इसको इस लिहाज से भी लिख सकते हैं, S goes to X, and then X goes to 0 as 0, sorry, 0, X 0, and then 1, X. What happened if I wrote 0 S 0, 1 X 1 goes to X, sorry, 1 S 1, S goes to X. This is cyclic. अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि this may or may not make one path, and this is a bit cyclic. आपसे better है questions में आप cyclic नहीं बनाए अपने CM चीज को. So this is not very right. So I'm just going to remove this. This is the final solution. If in the problems, in my solutions, there could be maybe a problem or something because I'm just making them right now. But later on, I will test them. If there's any questions, you could always ask. Okay, this is the next question that I got. So अब इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन में क्या है कि बीच में कोई हैशटैग का सिंबल तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब जो हैशटैग का सिंबल ये कहता है कि हैशटैग से पहले जो कुछ है वो बाद में होना चाहिए, ये पैरेंटोम है। एंड बाद में सेंस में होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पर कोई चीज हो सकती है। सो बेसिकली अगर मेरे पास है 0110, तो मैंने कहा 0110 का डब्ल्यू है, तो इसका क्या, इसका रिवर्स क्या होना चाहिए, इसका रिवर्स होना चाहिए, नॉट द पैलिंड्रोम, इसका रिवर्स होना चाहिए। तो मैंने कहा हैशटैग आ गया, इसका रिवर्स आया। अब दिस इज अ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का क्या कहना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितना भी जो कुछ होना चाहिए हो सकता है। ये जो W है ये सबस्ट्रिंग होना चाहिए ऑफ X। तो अब ये हो गया सबस्ट्रिंग की, ये जो W है यहाँ पर मुझे अगर ये पूरा X है तो हियर आई फाउंड द सबस्ट्रिंग। तब इस चीज का क्या आपको थोड़ा तरीका समझ आ रहा है। तरीका ये समझ आ रहा है कि मैंने कहा जब भी W आना शुरू हो उसके राइट साइड पे भी W आना शुरू हो, उसी तरह से जो हमने पैलिंड्रोम वाला तरीका किया ऊपर, कि अगर जो आ रहा है वो उसके बीच बीच में से आता जाए और जो राइट लेफ्ट हो वो दोनों सेम हो। और W के बराबर में कुछ भी आ सकता है, W के सीधे हाथ पे भी कुछ भी आ सकता है, W के उल्टे हाथ पे भी कुछ भी आ सकता है, बिकॉज अगेन इट्स अ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग में क्या है कि सबस्ट्रिंग खुद पूरा एक साथ होना चाहिए, बट उसके सीधे हाथ उल्टे हाथ पे जितना भी चाहे लाता दाग हो सकता है। तो अब इसका क्या कहना है कि फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट एट द स्टार्ट स्टेट। अब लेट्स फर्स्ट गो फॉर जनरेटिंग W एंड देन विल मूव टू X। तो अब मैंने कहा कि अब मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर ये हो सकता है 0 S 0 या 1 S 1, सिंपल पैलिंड्रोम जनरेशन ये हो रही है, ठीक है। अब मैंने कहा S की जगह पर कोई हैशटैग आना चाहिए टू सेपरेट दीज टू, the two strings to show that this is the reverse। तो मैंने कहा अच्छा ये S जा सकता है किसी हैशटैग पर, या फिर अगर आपको नहीं करना तो आपने कहा किसी X पर जाए और X जाए हैशटैग पर। तब आपने कहा मिनिमल स्ट्रिंग लेंथ क्या हुई कि एक सिंगल हैशटैग तो होना चाहिए, बिकॉज दिस इज सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार का क्या कहना है कि यहाँ पर भी एप्सिलॉन हो सकता है, यहाँ पर भी एप्सिलॉन हो सकता है, बट हैशटैग तो बीच में होना ही चाहिए। तो सिंगल हैशटैग इज योर मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ। तो आपने कहा अगर एस किसी पे भी नहीं जाता वो एक्स पे तो जाएगा, और एक्स हमेशा हैशटैग पे जाएगा। तो ये इस चीज से देखिए, इस चीज से एम्बिग्विटी खत्म हुई कि आपने कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एप्सिलॉन पे जा रहा होता और ये हैशटैग होता, तो फिर आपकी स्ट्रिंग एस डायरेक्ट एप्सिलॉन पे भी जा सकती थी। इसमें देखिए, इसमें डायरेक्ट एप्सिलॉन पे नहीं जा सकती। स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए बीच में हैशटैग तो जानना ही पड़ेगा। अब इसके बाद आपने कहा कि अब मुझे डब्ल्यू डब्ल्यू का तो हो गया काम, डब्ल्यू डब्ल्यू की तो सब स्ट्रिंग सीधा पे जनरेट होना शुरू हो गई। अब मुझे एक्स को देखना है। क्या मैंने कहा कि लेफ्ट साइड पर तो, ये जो लेफ्ट साइड है ये तो डब्ल्यू है, यहाँ पर तो कोई एक्स नहीं होगा, राइट साइड पर तो एक्स होगा। राइट साइड पर तो मुझे ऐसा नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाना है जो मुझे कुछ भी जिंदगी में डालने दे। तो आपने कहा अच्छा चलो, मैंने एक नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया डब्ल्यू, और डब्ल्यू भी नहीं क्योंकि दैट विल बी मोर कंफ्यूजिंग। तो आपने कहा चलो आर नाम रख दिया, और आपने कहा ये जा सकते हैं 0 या 1 या डबल आर या एप्सिलॉन। अब इसका क्या मतलब है कि इस आर की जगह पर कुछ भी आ सकता है, जितनी भी तादाद में आ सकता है, और जितना खत्म करना चाहो आ सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। अगर देखा जाए तो ये आर सिग्मा स्टार है और एक्स क्या है, सिग्मा स्टार है। तब हमने कहा मैं इस आर को लगाऊंगा,
तो आपने कहा अच्छा आर आ सकते सीधे हाथ पर, आर एस के उल्टे हाथ पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एस के उल्टे हाथ पे स्पेसिफिकली डब्ल्यू ही होना चाहिए। तो आपने कहा अच्छा आर सीधे हाथ पे आ सकता है, तो आपने कहा चलो आर को मैं यहाँ भी डाल सकती हूँ, तो आर को मैं यहाँ भी डाल सकती हूँ। सेम थिंग है, आर को मैं यहाँ भी डाल सकती हूँ, या आर को मैं यहाँ भी डाल सकती हूँ। So let's test it before finalizing this solution. Let's test it. तो आपने कहा अच्छा चलो आया 0 S R 0 R। फिर आपने कहा चलो और स्ट्रिंग को जनरेट करवाते हैं, 0 1 S 1 R। हाँ, अब देखिए अब क्या मिस्टेक हुई कि ये जो R है ये बीच में आ गया इस सब स्ट्रिंग के। तो आपने कहा अच्छा, तो मतलब यहाँ पर बीच में आर नहीं आ सकता, एस और जीरो के बीच में आर नहीं आ सकता। तो आपने कहा ओके लेट्स जस्ट रिमूव दिस आर हियर एंड लेट्स टेस्ट इट फर्दर। तो अब आपने कहा अच्छा ठीक है लेट्स डू इट अगेन। तो अब आपने कहा ओके लेट्स मूव अहेड, लेट्स डू 0 1 S 1 0 R। फिर आपने कहा चलो और भी इसको लंबा करते हैं, 1 1 S 1 1 0 R। अब आपने कहा चलो ये हो गया डब्ल्यू। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, अब इस डब्ल्यू की अब इस एस की जगह पर मैंने हैशटैग डाल दिया और 1 1 0 R कर दिया। अब मैंने कहा अब देखिए अब ये हो गया सब स्ट्रिंग 1 1 0 0 1 1, इज दिस डब्ल्यू एंड दिस इज डब्ल्यू रिवर्स, परफेक्ट, एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अब x किसी भी ला तादाद में आ सकता है। तो आपने कहा ठीक है, अब r की जगह पर मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, जैसे मैंने कहा 0 1 1 हैशटैग 1 1 0 1 डाला, फॉर एग्जाम्पल आर आर डाल दिया, फिर आर 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 डाल दिया कि इस आर की जगह पर दो आर आ गए। यस, तो अब मैंने कहा मैंने ट्रिपल वन डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। तो देखा जाए तो दिस डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू आर, is a substring of x. This is x. So I hope this makes sense. I hope this clears out. Can ask this question as well. What this question says is basically कि जो भी एक्स वाई आ रहा है वो हमेशा सेम ना हो। सही है, अब सेम ना हो, सेम होने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि जब आ रहा है एक्स आता है पैरेंट रूट बन जाए किसी के लिहाज से हो जाए। ये सेम ना हो, सेम ना होने का क्या मतलब है कि बीच में हैशटैग आए। अब सेम ना होने के लिए I'm gonna really quickly से explain this because I only have 1 minute left. So सेम ना होने का मतलब ये है कि अब जो भी आ रहा है कोई ना कोई चीज अलग हो। तो आपने कहा अच्छी चीज क्या अलग हो सकती है कि स्टार्टिंग एंडिंग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि अगर मैंने एक स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट किया, तो आपने कहा कि जितना भी आना चाहे, मैंने कहा ये देखिए अब ये जो हुआ एस की जगह पर हैशटैग हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट एक्सप्लेन दिस। हैशटैग आ सकता है, दिस इज द ब्रेक पॉइंट। दूसरा क्या आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ये हुआ 1 S 0, तब क्या हुआ कि इसका जो स्टार्ट है अलग है एक्स दोनों का, एक्स वाई का। अब आपने कहा अच्छा ठीक है इसी तरह से हो सकता है 0 S 1, या फिर अब आपने कहा कि नहीं मैं चाहती हूँ दोनों सेम हो बट दोनों में कोई ना कोई अलग चीज हो। तो आपने कहा अच्छा चीज दोनों को सेम ना होने के लिए, सेम ना होने के लिए आपने कहा अच्छा ठीक है दोनों को सेम कर देते हैं। बट ये जो चीज ये एस है, बट ये जो चीज है ये जाए किसी ये जाए ए पर या फिर बी पर। अब ए क्या कहता है कि ये जाए 0 0 A 0, या फिर ए क्या है हैशटैग 0, या फिर 0 हैशटैग। यस ओके परफेक्ट। सो अब आपने क्या बोला कि इज, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि अब मुझे वो वाली केस केटर करनी है कि दोनों जीरो से स्टार्ट करते हो बट कोई ना कोई अलग चीज हो। सही है, अब आपने कहा कि दोनों की अलग चीज होने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैंने कहा दोनों स्टार्ट तो सेम चीज से करते हो, बट जो बीच की जो चीज है, बीच की चीज कहती है कि नहीं, जो चीज आने की है वो अलग है। कि मतलब हैशटैग ही डायरेक्टली ना आ जाए, हैशटैग के साथ भी कोई सिंबल आए जो इन दोनों को अलग कर देता है। या फिर आपने कहा कि नहीं मैं चाहती हूँ ये वाई को अलग ना करे, ये एक्स को अलग कर दे। तो आपने कहा अच्छा ठीक है मैं एक बी बनाती हूँ जो कहता है बी अलग हो बट यहाँ पर 0 हैशटैग हो जाए या 1 हैशटैग। अब आपने कहा ये जो ए है ये भी हो सकता है 1 A 1, और ये जो बी है ये 0 B 0।
तो अब इस चीज से क्या हमें समझ आ रहा है कि आइदर यू कुड जस्ट डू अ वेरी सिंपल वन, दैट क्या बोलते हैं, ये जो स्टार्टिंग स्टेट्स है यही अलग हो, तो दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस, एंड यू डोंट हैव टू फाइंड एनी मोर डिफरेंसेस, दे कुड बी एग्जैक्टली द सेम बट दे विल स्टार्ट एंड एंड विद अ डिफरेंट थिंग. Or they could start and end with the same thing, but they will have one last thing that will make them different. So I hope this is clear. Uh, A के अंदर exactly ये भी हो सकता है, ये जो है 0 A 1 और 1 A 0, और B के अंदर भी इसी लिहाज से हो सकता है. और किसी भी पॉइंट इन टाइम पे अगर आपको दोनों को सेम चीज इनपुट करवानी है तो आप A पे जा सकते हैं या फिर B पे जा सकते हैं. Same. I hope there's no confusion. A basically denotes different X, sorry, different Y, and B denotes different X. So that's all for today. I've solved many questions that people have sent me. I hope this is all clear. Whatever's in the tutorial, I will join all the tutorial recordings. There are about 3, and I will join them all and then send them on Discord. I hope this makes sense. I hope you enjoyed the tutorial, and I'll see you in the next tutorial. Allah Hafiz.